A very good morning to all my dear students. In our last class, we have completed chapter number 4 of business studies, that is planning. Right? We have completed the types of plans. We have discussed about the rules, budgets, and programs in our previous class. Now, after the topic, there are differences given in your book, difference between plan and difference between objective and strategy, then difference between strategy and policy, then after the difference between budget and program. So you have to go through all the differences by yourself. Today, firstly, we will discuss the answers of practice task activity 1 forwarded to you. It includes simple fill-ups related with the chapter. So let's start with the part. You have to raise your hands or you can directly unmute yourself for the answer. So who can give the first answer? Planning bridges the gap between dash and dash. जल्दी से unmute करके बताइए. Planning किसका gap overcome करती है? Anyone? This is something you all know. Plan कब बनाया जाता है और किसके लिए बनाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? Planning bridges the gap between. No one in the class can give the answer. It will be present and future. Neeraj has raised the hand. अभी देखा मैंने. चलिए मैं आपको आंसर मैंने बता दिया है. Planning bridges the gap between present and future. Planning क्या करता है? आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके गैप को ओवरकम करता है. तो आपका आंसर रहेगा प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, रेज योर हैंड्स फॉर सेकंड आंसर. Planning reduces the risk of dash and overlapping and wasteful activities in the organization. Yes, Manish, unmute and speak. Uncertainty. Uncertainties, बिल्कुल. Uncertainties के risk को reduce करता है. खत्म तो नहीं कर सकता but reduce. Okay. Dash act as a base for controlling. जब हम control करेंगे तो क्या रहेगा हमारा basis? Controlling के लिए आपका base क्या होता है? बताइए, हमने इसको पढ़ा है, सिंपल सा है. Yes, जागृति. मैम प्लानिंग. Planning, very good. Planning is the base for controlling. ये तो बहुत easy से questions है, simple practice के लिए. चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड and activities are being performed according to the schedule is the part of dash step of planning. प्लानिंग के कौन से स्टेप में हम ये क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो सोचा था, हमने जो प्लान बनाया था, whether the plans are being implemented or not. Okay, raise your hands for the answer. सोचिए जरा, प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ. नंबर 1, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. नंबर 2, द सेटिंग अप प्लानिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस नाम से है. Number 3, listing the various alternatives available to achieve the goal. Number 4, evaluating the alternatives. Number 5, selection of alternative. Number 6, implementation of plans. And number 7, follow up. तो आपको क्या लग रहा है, किस स्टेप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सुशांत, वेरी गुड बेटा, यू कैन स्पीक. मैम फॉलो अप. Follow up, बिल्कुल. Follow up में भी just cross check whether the plans are being implemented or not. चलिए नेक्स्ट, ये तो सभी को आता है. ऑब्जेक्टिव शुड बी, सब बच्चों का एक साथ आंसर आना चाहिए. क्या होगा? ऑब्जेक्टिव शुड बी गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट. यस, करेक्ट आंसर इज स्मार्ट. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. बाकी नॉन पार्टिसिपेटिंग असेट्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू करें. चलिए नेक्स्ट, अगेन दिस इज सिंपल. प्लानिंग इज सेट टू बी डैश एज प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर. क्योंकि प्लान फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एनीवन? इट इज रिलेटेड विद द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. क्या रहेगा? फ्यूचरिस्टिक. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. प्लानिंग इज सेट टू बी फ्यूचरिस्टिक एज द प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर. ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि नवंबर दिसंबर वाला जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है, तो उसमें आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट. डैश लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. कौन सी लिमिटेशंस है प्लानिंग की जिसको मैनेजर कंट्रोल ही नहीं कर सकता?
एक्सटर्नल टेल मी द आंसर। एक्सटर्नल, वेरी गुड। इंटरनल लिमिटेशंस तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डैश कॉस्ट। यस उषान। ह्यूज। ह्यूज ह्यूज कॉस्ट, सिंपल सा पॉइंट था। चलिए ये वाला बता दीजिए, इसको अच्छे से रीड करके एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Mayank Gupta has set a target of clearing LLM exam by 2027, for which he has planned to clear +2 level from a reputed school, and then after clear out the entrance exam for LLB, so as to further move towards achievement of main objective. इनका टारगेट है कि 2027 तक, यानी आज से 6 साल बाद इनको LLM कर लेना है। किसके लिए? पहले इन्होंने +2 के लिए यानी 11-12 के लिए एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन लिया, फिर इनका टारगेट था कि LLB के लिए एंट्रेंस एग्जाम ये क्लियर कर ले। आपको बोल रहे हैं द टाइप ऑफ प्लान विच ही आएगा, ही स्किप हो गया यहाँ पे टाइप करते वक्त, which he is making at different stages to achieve the main plan are known as dash plans. जो प्लान्स वो अपने मेन प्लान को अचीव करने के लिए बनाते हैं, अपने मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, उन प्लान्स को क्या कहा जाता है? रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर्स। ओनली वन हैंड इज रेज्ड। व्हाट अबाउट द अदर्स? सोचिए, दिमाग लगाइए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए बेटा, माइंड को एक्सरसाइज करवाइए, मजा आएगा आपको आंसर ढूंढने में। चलिए, हाँ जी मनीष बताइए बेटा। स्टैंडिंग प्लान। नो, इट इज नॉट स्टैंडिंग प्लान। छुपा हुआ है इसका आंसर कहीं, डायरेक्टली नहीं गिवन, बट गुड ट्राई, अच्छी कोशिश की आपने। एनीवन एल्स? मुझे बताना पड़ेगा आंसर। चलिए, इट इज डेरिवेटिव प्लान। हमने पढ़ा था ना कि मेन प्लान बनाने के साथ साथ कुछ डेरिवेटिव प्लान्स बनाए जाते हैं टू अचीव द मेन प्लान। अब ऐसे केसेस जब आते हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं हमेशा। इसका कीवर्ड है ये, टू अचीव द मेन प्लान। मेन प्लान को अचीव करने के लिए, मेन प्लान को अचीव करने के लिए ये प्लान बने हैं, तो मेन प्लान को अचीव करने के लिए आप जो भी प्लान बनाते हो वो रहते हैं आपके डेरिवेटिव प्लान्स। इज इट ओके टू एवरीवन? किसी को डाउट तो नहीं है कि इसका आंसर ये क्यों हुआ? ऑल राइट देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वन अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड्स फॉर आंसर। Miss Zoya want to achieve a target of increasing the sales by 50%, for which she has prepared a proper list of various alternatives available by which she can achieve the target. She has performed the dash and dash step of planning function. ये कह रहे हैं इसने टारगेट सेट किया और इसने एक लिस्ट बनाई ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। आपको बताना है इसने कौन से 2 स्टेप परफॉर्म किए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ नाम पूछे हैं, वहां पे वो आपको कह सकते हैं एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय मिस जोया। हाँ जी उषान बताइए बेटा। listing the various alternatives for achieving the objectives और एक है Very good. selecting an alternative। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, एक है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव और एक है लिस्टिंग अप। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया, तो सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में इन्होंने लिस्ट अप कर लिया वेरियस अल्टरनेटिव्स। तो ये 2 स्टेप्स आपको वहां पे एक्सप्लेन करने होते हैं। वेरी गुड उषान। हैव अ लुक एवरीवन। We have already discussed the 10 questions. Now these are again 5 more case studies for all of you. These are the case studies which can be asked for 3 marks or 4 marks in the examination. यहाँ पे मैंने आपको 1 मार्क के बेसिस पे ही दी है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। एग्जाम में आइडेंटिफाई के साथ ऐड हो जाएगा एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। चलिए उषान बेटा फर्स्ट केस स्टडी को रीड कर दीजिए सभी के लिए।
Sundar Cycles was in the business of manufacturing racing cycles and had a monopoly in the market since last 13 years. The business was going well and the company was consistently meeting its objectives of increasing 10% sales by every year. Encouraged by the good track record, the managing director of the company kept an ambitious target of 15% increase in the sales of product for upcoming year. Same year, two competitors entered the market with attractive offers due to which the company failed to meet its target. Identify the limitation of planning due to which the company was not able to achieve its target. Also identify one type of plan hidden in the above case. Okay, very good. I am explaining the case for you and you have to raise your hands for the answer. I want सभी बच्चों के hands raise होने चाहिए. सबसे पहले जब ऐसी बड़ी केस स्टडी आपको दिखे तो आपको ट्रिक क्या फॉलो करनी है कि आपको सबसे पहले शुरुआत कर लीजिए इसकी. लास्ट पार्ट पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है. ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहता है प्लानिंग की लिमिटेशन और एक टाइप ऑफ प्लान जो ऊपर हिडन है. तो चलिए क्या केस स्टडी बता रहे हैं कि सुंदर साइकिल्स जो है उसका एक बिजनेस था साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने का एंड इट वाज एंजॉयिंग द मोनोपोली एंड इट वाज able to achieve the objective of increasing the sales by 10% every year. It means हर साल इनकी sales 10% increase होगी. बहुत बढ़िया बात है. इससे इम्प्रेस होके मैनेजिंग डायरेक्टर ने टारगेट सेट कर लिया दैट इट हैज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 15% इन द अपकमिंग ईयर. सेल्स कितनी बढ़ा देनी है? 15% बढ़ा देनी है. बट इन द सेम ईयर दो न्यू कॉम्पिटिटर्स आए विद अट्रैक्टिव ऑफर्स और उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज रखी जिसकी वजह से सुंदर साइकिल्स अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई. चलिए रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर्स. देखते हैं कौन आंसर दे रहा है. ओनली वन स्टूडेंट. व्हाट अबाउट द अदर्स? Okay, I can see now students are raising hands. Be quick everyone, give it a try. खुशाग्र बेटा आप बताइए कौन सा प्लान हिडन है? कौन सा प्लान छुपा हुआ नजर आ रहा है आपको इसमें? टाइप ऑफ प्लान. खुशाग्र बेटा गिव इट अ ट्राई. नहीं पता चल रहा. गर्व आप बताइए बेटा कौन सा प्लान है हिडन? नो नहीं समझ में आया. मनीष मैम मेरे हिसाब से सिंगल प्लान. टाइप ऑफ प्लान जो अपने 8 पढ़े हैं पर्टिकुलर उनमें से कौन सा है? हमने 8 टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे. उन 8 टाइप्स में से कौन सा प्लान है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स. वेरी गुड. यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 15%. टारगेट है यानी आपका ऑब्जेक्टिव है. चलिए लिमिटेशन किसको आइडेंटिफाई हो गई? लिमिटेशन कौन सी है यहाँ पे? हाँ जी उशान. हिंट दे देती हूँ मैं आपको. एक्सटर्नल यस एक्सटर्नल में पॉलिसीज. चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी. वेरी गुड बेटा. आप सभी बच्चे देख लें बोर्ड में हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं. डायरेक्ट चीजें नहीं पूछते, केस स्टडी फॉर्म में पूछते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. ओके रिया रीड द क्वेश्चन फॉर एवरीवन एंड देन आफ्टर यू ऑल हैव टू रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर. पढ़िए बेटा. मैम शो नहीं हो रहा कुछ. हाँ हो गया. Planning is an intellectual process which make it essential for the organization to hire professional experts in order to forecast the future and evaluate the various available alternatives. The organization requires proper funds so as to pay the highest salary of these professional experts. Identify the related feature and related limitations of planning. ओके सोचिए और आंसर बताइए. ये कह रहे हैं प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस व्हिच मेक इट एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन to hire some professional experts so that they can forecast the future and they can evaluate the available alternatives. Again, organization needs fund to pay the salary to these professional experts. You have to search one feature and one limitation of planning which is hidden in the above question. इंटेलेक्चुअल है. बिजनेस स्टडीज इंटेलेक्चुअल है. दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सा ड्रॉबैक यहाँ पे प्लानिंग का हिडन है और कौन सा फीचर हिडन है.
Yes, Sushant, very good, beta. Well, Tell me the answer. Okay, Ma'am, Manish has planning is a also mental unmuted. exercise. Okay, planning is a mental exercise. मैम लिमिटेशन में प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. वेरी गुड. लिमिटेशन में प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. तो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आता है तो आंसर भी आ जाएगा. तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है. चलिए थर्ड. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, मैं रीड कर देती हूँ, आप लोग फटाफट से आंसर्स के लिए हैंड रेज कीजिए. The vice president of a company formulates specific goals with along with the activities to be undertaken to achieve the goal. वाइस प्रेसिडेंट ने गोल सेट कर लिया और डिसाइड कर लिया क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल. बट it is not limited to top level of management, whereas planning is done by departmental heads and supervisors. by गलती से पीपिंग टाइप हुआ है, कीपिंग है क्योंकि फोन पे मैं टाइप करती हूँ तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है, यू हैव टू इग्नोर. By keeping into the future while analysis and predicting the future. Identify the related feature of planning referred in the above paragraph. एक फीचर छुपा हुआ है, इजी सा फीचर है. आपको प्लानिंग के फीचर्स को दिमाग में रिकॉल करना है, आपको पता चलेगा कौन सा फीचर है. ये कह रहे. वेरी गुड. जागृति हैज रेज्ड द हैंड. यस जागृति. मैम परवेसिव. परवेजिव, बिल्कुल क्विकली आंसर दिया है. क्लैपिंग फॉर जागृति. परवेजिव है. क्यों परवेजिव है? क्योंकि तीनों लेवल्स पे परफॉर्म किया जा रहा है. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो फीचर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए और सारी हेडिंग्स लर्न होनी चाहिए. फिर हम यहाँ पे एक एक हेडिंग को अप्लाई करके बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे. बोर्ड लेवल में एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आप लोगों को. तो प्लानिंग इज परवेजिव, इसका आंसर ये है. चलिए नेक्स्ट वन. चलिए ये बताइए. Having transformed 3,500 kirana stores across 7 cities into virtual supermarkets, the startup QuickBiz further decided in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities of the country by the end of this year. ये कह रहे हैं QuickBiz starters है जिन्होंने ऑलरेडी 3,500 किराना स्टोर सेटअप कर लिए. अब इनका प्लान है कि आने वाले टाइम में इनको लगभग 15,000 से 20,000 स्टोर ओनर्स के साथ कांटेक्ट करना है. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हिडन. पहले तो फंक्शन बताइए कौन सा फंक्शन है. ट्यूबलाइट्स जलाइए. प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग फंक्शन ही होगा. और अगर एग्जाम में आ जाता है, अभी तो प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो पता चल गया, एग्जाम में आ जाता है तो कीवर्ड ढूंढिए. कीवर्ड है डिसाइडेड इन एडवांस. यहां से आपको पता चलेगा कि एडवांस में हम कौन से फंक्शन में डिसाइड करते हैं. प्लानिंग फंक्शन में. ठीक है, तो प्लानिंग फंक्शन है. फिर आपको कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप ऑफ फंक्शन परफॉर्म. कौन सा स्टेप इन्होंने परफॉर्म किया बताइए. आपको क्या लगता है प्लानिंग का कौन सा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? एनीवन? फर्स्ट स्टेप है क्या? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. टारगेट सेट किया है क्या इन्होंने कि इनको 15,000 से 20,000 ओनर्स से मिलना है. तो प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म किया और उसका फर्स्ट स्टेप. लास्ट केस स्टडी आज के लिए देखिए जरा. Z Limited is a reputed cloth manufacturing company of Mumbai. It wants to increase the sales. The planning executive of company suggested the head that various alternatives for increasing the sales may be reducing prices of product, improving packaging of product, offering trade discounts to customers, giving cash discounts to foster cash sales, distributing free samples, etc. आपको बताना है प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है. रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर्स. इजी सा पॉइंट है. ये जो एग्जीक्यूटिव है, प्लानिंग एग्जीक्यूटिव, इसने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया? यस मनीष, वेरी गुड बेटा. अनम्यूट एंड स्पीक. इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स. दोबारा देखिए, थोड़ा सा आसपास ही है. मैम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स. बिल्कुल, जो थर्ड स्टेप है ना, वेरी गुड. थर्ड स्टेप लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स. इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो आप प्राइस भी रिड्यूस कर सकते हो, आप पैकेजिंग इंप्रूव करके भी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट देके भी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो. So what we have done, we have just prepared a list of various alternatives which are available for achieving the goal.
तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए 15 क्वेश्चंस। मैंने आपको इन 15 के आंसर्स भी बता दिए। अब 10 क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं उसके लिए आपको एक ही काम करना है, 8 टाइप्स ऑफ प्लान को अच्छे से पढ़ना है। जब आप उन 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स को रीड करोगे तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे। हाँ जी बेटा उषान, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम कल आप रिवीजन कराओगे क्या? अगर आप में से ज्यादा बच्चों को प्लानिंग की रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज। Okay, everyone. So I hope you are not having any doubts. We have completed the chapter number 4 of business studies, that is planning. In our next class, we will be starting with a new chapter, that is chapter number 8, controlling. हम सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे और नई क्लास में एक चैप्टर पहले करेंगे। क्यों पहले करेंगे वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम अपने बीच के 3 चैप्टर्स पिकअप करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ वेरी न्यू चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी क्लास में रेगुलर रहेंगे और आप सब फर्स्ट डे से ही अपनी पॉजिटिविटी के साथ क्लासेस अटेंड करेंगे। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर